Now we will learn how the solid particle will get converted to gas directly without getting converted to liquid. For this, let us take an activity. For that, take some ammonium chloride particles, crush it and put it in a dish. Okay, put an inverted funnel on that, put a cotton plug on the stem of the funnel. Now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity? क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड के छोटे छोटे दाल की तरह दाने लेंगे, उसे डायरेक्टली हीट करेंगे. हीट करने से पहले उसके ऊपर एक चिमनी की शेप की फनल, छन्नी की तरह एक छोटी सी छन्नी उस पर उल्टा डालेंगे, क्योंकि छन्नी के जो सुराख में होता है एक छोटा सा कॉटन का पीस लगाएंगे. जब हम उसे हीट देंगे, नीचे से जब आप उसे आग देंगे, तो व्हाट हैपेंस, द अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स स्टार्ट एवापोरेटिंग. अमोनियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स है भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे. सो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस. ठीक है, कोई भी चीज का अगर सॉलिड स्टेट में थी, उसे अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? सब्लिमेशन. SUBLIMATION. सब्लिमेशन मीन्स the change of state from solid to gas or vice versa is called as sublimation. The change of state from solid to direct gas without changing into liquid or vice versa is called as sublimation. Now let us see what are the effects of pressure, change of pressure. That means if the pressure of the particles, the elements is changed, what all the changes will occur in this matter. Now next topic is effect of change of pressure. We have already learned that difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the particles, constituent particles. Okay, what will happen if we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? That means in a cylinder, if there is a gas, and if you exert a pressure or if you give a pressure to that, what will happen? Will the particles come closer, or do you think increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Applying pressure and reducing temperature can liquefy the gas. That means by applying the pressure and reducing the temperature, the gas can be converted into liquid. Similarly, solid carbon dioxide, it is stored under high pressure. Solid carbon dioxide get converted directly into gas when we decrease the atmospheric pressure to 1 without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is also called as dry ice. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance. That means substance is either a solid or a liquid or a gas. How we can determine? We can determine by the pressure and temperature of that substance. मतलब बच्चों, अब यहाँ पे हमें ये मालूम करना है कि प्रेशर के चेंज होने से क्या होता है. ठीक है, अब कोई भी चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स के प्रेशर की वजह से. ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसके अंदर प्रेशर नहीं होता, वो बॉन्ड्स में एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं. लिक्विड में जो है पार्टिकल्स का प्रेशर ज्यादा होता है, गैस में पार्टिकल्स के प्रेशर और ज्यादा होता है. अब किसी गैस को लेकर अब सिलेंडर में अगर कोई गैस भरते ही गए तो क्या होगा? वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो गैस क्या होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो लिक्विड गैस में होता है, लेकिन सॉलिड भी होता है. वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम प्रेशर देंगे, ठीक है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, gets converted directly to the gaseous state on decreased of pressure. इसके प्रेशर को डिक्रीज करके 1 पे कर देंगे तो क्या होगा? वो डायरेक्टली लिक्विड बन जाएगा. राइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड था वो डायरेक्टली लिक्विड बन जाएगा. तो इससे हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स के प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी बन सकते हैं.
Thus we said that pressure and temperature determine the state. तो किसी भी चीज को यह मालूम करना है कि या ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर को देखना चाहिए कि उसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर कितना है। प्रेशर और टेम्परेचर कम है तो वो लिक्विड है, सॉरी वो सॉलिड है। प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा है तो वो लिक्विड है। प्रेशर और टेम्परेचर और ज्यादा है तो वो गैस है। Now next topic is evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? नाउ हम पढ़ेंगे एवापोरेशन के बारे में। एवापोरेशन बच्चों, क्या ये जरूरी है कि किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसे गर्म करना ही जरूरी है, उसे उबालना ही जरूरी है? ठीक है, क्या ये जरूरी है कि किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट, किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसका प्रेशर देना जरूरी है, उसका प्रेशर इंक्रीज करना जरूरी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना जरूरी है, तभी वो सॉलिड जाके गैस होगा, तभी वो लिक्विड जाके गैस होगा? ऐसा नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पानी है। पानी को अगर आप गर्मा के मौसम में आप पानी को क्या करो, बस एक गिलास में रख के, एक गिलास में लेके बस बाहर रख दो, वो अपना आप गर्म हो जाएगा, अपना आप भाप बन के उड़ जाएगा। कच्चे हमारे कपड़ों को हम क्या करते हैं, सूखने के लिए बाहर डालते हैं, तो कपड़ों के अंदर का जो पानी है गर्म भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये पानी बाहर निकला कैसा? वी वेट क्लोथ्स ड्राई अप। हाउ? द वाटर लेफ्ट अनकवर्ड विल स्लोली एवापोरेट। हाउ? पानी को अगर खुला रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता भाप बन के उड़ जाएगा। किस वजह से? उसके पीछे वजह क्या है? कच्चे कपड़े सूखेंगे कब? जब उसके अंदर का पानी भाप बन के उड़ेगा। वो कैसे भाप बनेगा? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature, in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapors to any other temperature below its boiling point is called evaporation. अब मालूम ये करना है कि पानी अगर खुले में रख देंगे तो उबलेगा कैसे? वजह ये है कि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैविंग काइनेटिक एनर्जी। और एवरी पार्टिकल के अलग अलग फोर्स, किसी पार्टिकल्स में कम काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी पार्टिकल्स में ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी। वो पार्टिकल्स जो अंदर है, दैट मीन्स ग्लास में पानी लो, पानी के सतह पर जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उसके मुकाबले में जो पार्टिकल्स पानी के अंदर है, पानी के डीप में है, ग्लास के अंदर नीचे हिस्से में जो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। और ऊपरी सतह के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से वो बॉन्ड को तोड़कर गैस बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, ऊपरी सतह के जो पार्टिकल्स है पानी में, लिक्विड में, उनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उन्हें मूवमेंट करने की ताकत ज्यादा होती है। इस वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स से जो उनका बाउंड होता है, उनका कनेक्शन होता है, उनका अट्रैक्शन होता है, वो तोड़कर हवा बन के उड़ जाते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्टिकल्स जब सतह पे आते हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं, जब ऊपर लेवल पे आते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वो बाउंड तोड़कर, अपने अट्रैक्टिव बॉन्ड तोड़कर एवापोरेट होने के काबिल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस, तो phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as evaporation. The phenomena of change of a liquid into vapors at below its boiling point is called as evaporation.